آپ لوگوں کے مشکور ہے کہ آپ لوگ ہماری پریس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز بنو گے. معزز صحافی حضرات، آج کے پریس کانفرنس کرنے کا مقصد آپ معزز صحافی حضرات کا توجہ سانحہ توتک کے طرف مبذول کرانا ہے. آج ہی کے دن یعنی 25 جنوری 2014 کو غزدار کے علاقے توتک میں اجتماعی قبریں دریافت ہوئے تھے، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی از خود سو موٹو نوٹس لیا تھا. اور اس کے علاوہ بلوچستان کی صوبائی حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ آج تک جو صوبائی حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنایا تھا اس نے نہ توتک سے برآمد ہونے والے لاشوں کی شناخت ظاہر کی، نہ اس میں جو ملوث کردار تھے ان کے حوالے سے بتایا گیا، اور نہ ہی جو سپریم کورٹ میں صوبائی حکومت نے یہ کہا تھا کہ جو لاشیں توتک سے برآمد ہوئے ہیں ان کا فرانزک لاہور کے فرانزک لیبارٹری سے DNA ٹیسٹ کیا جائے گا اور ان کے شناخت کے تمام ذرائع استعمال کیا جائے گا اور ان کو میڈیا کے سامنے لایا جائے گا. لیکن آج تک نہ ان لاشوں کا پوسٹ مارٹم رپورٹ منظر عام پر لایا گیا اور نہ ہی ان کا DNA رپورٹ منظر عام پر لایا گیا، اور نہ ہی سپریم کورٹ نے جو سانحہ توتک پر سو موٹو نوٹس لیا تھا اس کے حوالے سے اس نے نہ ہی اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے تھے. معزز صحافی حضرات، 25 جنوری 2014 کو ایک مقامی چراغا نے بلوچستان کے ضلع غزدار کے علاقے توتک میں اجتماعی قبروں کی موجودگی کی اطلاع حکام کو دیا تو سیکورٹی فورسز نے فوراً علاقے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا. یہ اطلاع لاپتہ افراد کے لواحقین کے لیے تشویشناک تھی، کیونکہ بلوچستان سے ہزاروں افراد جبری لاپتہ ہے اور 2009 سے ریاستی اداروں کے ہاتھوں جبری لاپتہ افراد کو دوران حراست ماورائے آئین قتل کر کے ان کے لاشیں ویرانوں میں پھینک دے اور انہیں دفنانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اس لیے لاپتہ افراد کے لواحقین نے توتک سے برآمد ہونے والی لاشوں تک رسائی کی کوشش کی تاکہ وہ اس پر اطمینان کر سکے کہ وہ لاشیں ان کے لاپتہ پیاروں کی تو نہیں ہے. وہاں پر موجود سیکورٹی فورسز نے لاپتہ افراد کے لواحقین کو اس جگہ کا معائنہ کرنے سے بزور طاقت روکا. وہاں جانے والے لوگوں پر ہوائی فائرنگ کر کے انہیں منتشر کر دیا تاکہ توتک سے برآمد ہونے والی اجتماعی قبروں کی حقیقت عام لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے. معزز صحافی حضرات، 1 فروری 2014 کو میں نے تنظیمی سطح پر لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ اسلام آباد میں توتک سے برآمد ہونے والے اجتماعی قبروں کے حوالے سے پریس کانفرنس کی تو سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے میرے پریس کانفرنس پر سانحہ توتک کا سو موٹو نوٹس لے کر سیکرٹری داخلہ بلوچستان اور ڈپٹی کمشنر غزدار وحید شاہ کو نوٹسز جاری کیے کہ سپریم کورٹ نے سانحہ توتک کی اگلی سماعت میں پیش ہو کر واقعہ کے حوالے سے اپنا رپورٹ پیش کریں. فروری 2014 کو سپریم کورٹ نے توتک سانحہ پر اگلی سماعت کے دوران
डीसी गुलजार पेश होकर रिपोर्ट जमा की और कहा कि तूतक से 13 मसकशुदा लाशें मिली हैं, जिनमें से 2 की शनाख्त ज़िला आवरान के रहायशियों कादिर बख्श वल्द बयान और नसीर अहमद वल्द बयान के नाम से हो चुकी है, जिन्हें कानूनी कार्रवाई के बाद उनके लवाकिन के हवाले कर दिया गया है। सेक्रेटरी दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि हुकूमत बलूचिस्तान ने साना तूतक के हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नूर मोहम्मद मिस्कानज़ई की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बनाया है, जो 1 माह में इस वाक़या की तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और सूबाई हुकूमत इस रिपोर्ट की रोशनी में साना में मुलविस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, 4 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट साना तूतक पर समाअत के दौरान तंजीमी सतह पर अपना मौक़िफ़ पेश करके कहा कि डीसी गुलजार वहीद शाह तूतक के इज्तिमाई कब्रों से बरामद होने वाले लाशों की तादाद के हवाले से गलत बयानी कर रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट ने डीसी के बयान के अखबारी कटिंग भी जमा किए, जहां पर साना तूतक के हवाले से पहली दिन जो उसने साफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि तूतक के इज्तिमाई कब्रों से 25 लाशें निकाली गई है और खुदाई जारी है, वहाँ मौजूद दिगर लाशों को भी निकाला जाएगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि अगले दिन साना तूतक के हवाले से साफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डीसी गुलजार अपने पहली स्टेटमेंट से मुकर गया और कहा कि तूतक से सिर्फ 13 मसकशुदा लाशें मिली हैं। मैंने दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट को ये भी आगाह किया कि तूतक के जिस जगह से इज्तिमाई कब्रें बरामद हुई है, उस जगह को फोर्सेस ने अपने घेरे में ले लिया है और वहाँ पर लापता अफराद के अहले लवाकिन और अहले इलाका और साफ़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमें खदशा है कि तूतक से बरामद होने वाले लाशों की असल तादाद और साना तूतक के असल हक़ाइक़ को अवाम और मीडिया से छुपाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तसद्दुक़ रसूल जैलानी ने सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान को हुक्म दिया कि जस्टिस नूर मोहम्मद मिस्कानज़ई की सरबराही में जो कमीशन बनाया गया है, हुकूमत बलूचिस्तान ये फौरी तौर पर बंदोबस्त करे कि कमीशन तूतक में मौजूद इज्तिमाई कब्रों का विज़िट करे और कमीशन वाइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मलिक ज़हूर अहमद शाहवानी को भी अपने साथ ले जाए, ताकि तूतक वाक़या के असल हक़ाइक़ गैर जानबदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये भी हुक्म दिया कि इज्तिमाई कब्रों से बरामद होने वाली लाशों के DNA टेस्ट करवाने के साथ साथ उनका पोस्टमार्टम, उनका वजह कत्ल और शनाख्त मालूम किया जाए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, 12 फरवरी 2014 को बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने साना तूतक के तहकीकात के हवाले से बनाई गई जुडिशल कमीशन के सरबराह नूर मोहम्मद मिस्कानज़ई को वक़्वा का मुआयना करवाया तो हमें वहाँ नहीं ले जाया गया। जब मैंने सूबाई हुकूमत से रब्ता किया कि हमें कमीशन के साथ क्यों नहीं ले जाया गया, तो सेक्रेटरी दाखिला ने सिक्योरिटी का बहाना बनाया कि हमें वहाँ ले जाने से हमारी जान को खतरा लाक हो सकते थे। जस्टिस नूर मोहम्मद मिस्कानज़ई की सरबराही में बनने वाले जुडिशल कमीशन ने बाद में अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि मुतासरा जगह से 300 के करीब गोलियों के खोल मिले हैं, जिनके जरिए मुक़द्दम को कत्ल कर दिया गया था। जो लाशें वहाँ से उठाई गई इन पे जो चूना डाल दिया गया था ताकि उनकी शनाख्त न हो सके। कमीशन ने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा कि साना तूतक के ताने बाने शफीक मेंगल से मिलते हैं, क्योंकि इस एरिया में शफीक मेंगल के मुसल्लह कैंप्स मौजूद होने के हवाले से ठोस शवाहिद मिले हैं। कमीशन ने अपने रिपोर्ट में सिफारिश की कि साना तूतक में शफीक मेंगल को शामिल तफ्तीश किया जाए। इस रिपोर्ट के आने के बाद
शफीक मेंगल कुछ अरसे के लिए रूपोश हुए। अक्सर लोगों का कहना था कि इस दौरान शफीक मेंगल अफगानिस्तान चला गया था। इस दौरान शफीक मेंगल ने कुछ बयानात भी जारी किए और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया और उन्हें तंग किया गया तो वो साने तूतक में मुलविस असल किरदारों को बेनकाब करेगा। उसके कहने का मकसद ये था कि साने तूतक में मुलविस असल किरदार रियासती इदारे है। उसके इन बयानात के आने के बाद सूबाई हुकूमत ने न शफीक मेंगल को शामिल तफ्तीश किया और न ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। शफीक मेंगल के हवाले से बलोच सियासी पार्टियों का कहना है कि बलूचिस्तान में टेरर स्क्वाड के जितने भी ग्रोह सरगर्म अमल है उन सब की सरबराही कर रहा है और इन ग्रोह को रियासती इदारों की भरपूर काबू हासिल है और ये गिरोह बलोच सियासी कारकुनों को जिबरी लापता करने और उन्हें टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल करने में रियासती इदारों की मावनत भी करते हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अब आते हैं कि तूतक के इज्तिमाई कब्रों से बरामद होने वाले लाशों की असल तादाद कितनी है। हुकूमत के मुताबिक तूतक में इज्तिमाई कब्रों की तादाद 4 है। इनका कहना है कि पहले दिन इज्तिमाई कब्रों से 11 लाशें मिली और दूसरे दिन 2 लाशें मिली और 30 मार्च 2014 को तूतक से मज़ीद 4 लाशें मिली। यानी हुकूमत का कहना है कि तूतक के इज्तिमाई कब्रों से टोटल 17 लाशें मिली है। जिस दिन कमीशन इज्तिमाई कब्रों का मुआयना करने तूतक गया था तो उसी दिन डॉन अखबार का सहाफ़ी जो आप BBC के लिए रिपोर्टिंग करता है सैर बलोच भी वहां जाने में कामयाब हुई थी। सैर बलोच के मुताबिक तूतक में इज्तिमाई कब्रों की तादाद 11 है और खुदाई सिर्फ 4 इज्तिमाई कब्रों की गई है। इन चीज़ों से ये हकीकत आया होती है कि तूतक में इज्तिमाई कब्रों की तादाद 4 नहीं बल्कि ज़्यादा है और वहाँ से बरामद होने वाले लाशों की तादाद हुकूमत और जुडिशल कमीशन के बताए गए तादाद से कहीं ज़्यादा है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हमें अफसोस तो इस बात का होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सानाई तूतक पर सो मोटो नोटिस लेने के बावजूद भी इस इंसानी अलमिये पर इंसाफ के अमल को मुकम्मल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सानाई तूतक पर 3 समाअत करने के बाद इस केस को मिसिंग पर्सन केस के साथ यकजा किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मिसिंग पर्सन के केसेस लापता अफराद के कमीशन के हवाले किया। तो इसके बाद सानाई तूतक के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत नहीं हुई। हालांकि मुल्की कवानीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की ये आईनी जिम्मेदारी बनती थी कि सानाई तूतक केस को मंतकी निकाल तक पहुँचाती। इसलिए हम ये समझते हैं कि मुल्की कवानीन के मुताबिक अब ये मौजूदा चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो सानाई तूतक केस पर दोबारा समाअत शुरू करे और तूतक से इज्तिमाई कब्रों से बरामद शुदा लाशों का DNA टेस्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से तलब करें। मकतूलैन और उनके कातलों की शनाख्त को यकीनी बनाए। सानाई तूतक के असल हक़ाइक़ को सामने